नमस्ते दोस्तों, आज ये मेरा वीडियो है टैक्सेबिलिटी ऑफ द पीएफ इंटरेस्ट। मैंने आज वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि 5 अप्रैल को ईपीएफओ ने एक सर्कुलेशन किया था, एक गाइडलाइन फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू ऑल पीएफ कमिश्नर्स। तो इसलिए मैं सोचा कि ये आपको भी थोड़ा इंटीमेट कर दूं कि इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्या, मैं आपको बता दूं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट exist in the Income Tax Act regarding chargeability of the tax interest on PF contribution, employee PF contribution, what is amended in section in Finance Act 2021। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, चलिए मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहले मैं बताऊं कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था, दैट इज अमेंडमेंट सेक्शन 10 क्लॉज 11 एंड 10 क्लॉज 12 में हुआ था, राइट। 10 क्लॉज 11 इज मेंट फॉर द गवर्नमेंट set up provident fund like general provident fund or PPF. Clear? Section 10 clause 12, this is for the recognized provident fund. That means any provident fund trust set up by any company which is recognized by the EPFO, that is recognized provident fund, जो कि normally companies लोग जो trust maintain करते हैं। So section 10(11) that is the that provide exemption to the contribution made in the GPF or PPF. Section 10 clause 12 provide the exemption provided in the recognized provident fund. Clear? What is the amendment? Amendment provided that any contribution, any employee contribution on or after 1st April 2021 in the employee's contribution person more than 2.5 lakhs, that is interest accrued on the employee's contribution on more than 2.5 lakhs of corpus after 1st April 2021 is become taxable, and there is no such exemption available in clause 10(11) and 10(12), right? Further it is amended that government provide amendment that in a fund where there is no contribution is being made by the employer, like in the case of GPF, in that case this 2.5 lakhs is been amended to 5 lakhs, meaning thereby suppose in a provident fund trust for employer not contributing, the interest accrued on the corpus of employee's corpus more than 5 lakhs is taxable, right? This is the amendment provided in 10 clause 11 and 10 clause 12 from effective from 1st April 2021। अभी उसके बाद क्या हुआ, on 31st August 2021 CBDT notify a new rule, that is rule 9D, that provide us the how to calculate this taxable corpus and how to calculate the non-taxable corpuses. So simple, taxable corpus and non-taxable corpus. I will tell you the non-taxable corpus. Non-taxable corpus is that opening balance as on 31st March 2021, first. Second, contribution up to 2.5 lakhs. Second point. And third is interest accrued on these two, opening and contribution up to 2.5 lakhs after 1st April 2021. Clear? This is called non-taxable corpus. What is taxable corpus? Taxable corpus means contribution on and after 1st April 2021 more than 2.5 lakhs, this is taxable, and interest accrued on that corpus, this is called taxable, and withdrawal from there itself. As per rule 9D, you have to maintain these two separate statements for taxable and non-taxable corpus of the EPFO provident fund. ये तो clear cut था। After that, EPFO on 5th April 2022 issued a guideline how to deduct the TDS to all PF commissioner including the recognized provident funds। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, important बात क्या है? What is the ये effective date? द सर्कुलर मैं आपको लिंक में भी दे दूंगा, सर्कुलर आप उसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, 43 पेज का सर्कुलर है उसमें। इफेक्टिव डेट क्या है? दिस सर्कुलर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 22 और फाइनल सेटलमेंट व्हिच एवर इज लेटर। नेक्स्ट, in all other not including the final settlement of transfer, the TDS will be deducted on the date of credit of the interest. So it is provided that at the time of credit of interest, this TDS will be deducted. Okay, this is called effective date. Then it is called about the applicability. When it is applicable, in nutshell, the section deduction of the TDS will be applicable at the time of PF final settlement,
ट्रांसफर or transfer from exempted establishment to EPFO and vice versa, on transfer from one trust to another, or at the time of annual account processing. Okay, the TDS will also be applicable in the death cases in case of a live member. It will be applicable to all EPF member including member of exempted establishment, and it will also be applicable for the international worker. Okay, these are all called the applicability provisions. तो ये सब केसेस में इंक्लूडिंग जो सेटलमेंट हो रहा है, एनुअल अकाउंट जो आप मेंटेन करेगा पीएफ ट्रस्ट, इन ऑल दिस केसेस में आपका टीडीएस प्रोविजन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वर्कर्स ऑल्सो. देन व्हाट इज द रेट इन फोर्स जो आप प्रोवाइड किया गया है? तो दे हैव प्रोवाइडेड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194A, दैट इज 10%. Okay, suppose the PAN has not been maintained by the employee in this case a member. In that case, higher rate will be deducted at the rate of 20%, that is under section 206AA. Clear? In case of non-resident, what is the rate provided in the rate proposed in the circular? That is 30% plus surcharge plus cess. In case of DTAA agreement in the country of resident, that case the rate provided in the DTAA agreement. Third, suppose the SSC provide the lower deduction certificate under section 197, then the rate provided in the section 197, that rate should be deducted by the EPFO commissioner or the EPFO trust. Okay, that is the rate provided. When TDS not to be deducted? TDS will not be deducted when the interest accrued is below rupees 5,000, क्योंकि ऑलरेडी 194A में 5,000 का एग्जेम्पशन लिमिट प्रोवाइड किया गया है, इसके चलते आपको नहीं कटेगा. क्लियर? और हम अगर ये बात देखें कि कब मन में आप अगर कोई प्रोविडेंट फंड में काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में होगा कि क्या हम मंथली कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, आपका इंटरेस्ट जो अक्रू होगा वो मंथली होगा, वो जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो ईयरली होगा. राइट? ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर. और ये सर्कुलर में और एक चीज़ दिया गया है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर्स, एक एग्जेम्प्टेड एंटरप्राइजेस से ईपीएफओ ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर फ्रॉम RPF to any GPF or GPF to RPF, what is the process, how the statement will be passed from one trust to second trust, ये all पैरामीटर उसमें सर्कुलर में दिया गया है कि कैसे आपको ट्रांसफर करना है. और हाँ, ये सर्कुलर में एक एग्जाम्पल के साथ में बताया गया है कि आपको कैसे मेंटेन करना है टैक्सेबिलिटी के ऊपर में. ओके, ये हो गया ऑल टुगेदर द डिटेल प्रोवाइडेड इन द सर्कुलर कि आपको टीडीएस कब काटना है, कितना रेट में काटना है, और हाँ टीडीएस काटने के बाद आपको ऑफ कोर्स रिटर्न फाइल करना है. और हाँ, सपोज यू आर ए मेंबर, आपका ईपीएफओ जो कंट्रीब्यूशन मोर देन 2.5 लाख है, तो ये क्योंकि टीडीएस तो कट गया आपका, तो ये पोर्शन आपको आईटीआर में भरना होगा. ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट. ओके, प्लीज रीड द एग्जेम्पशन सेक्शन. ये अमेंडमेंट कहाँ हुआ? सेक्शन 10, 11 एंड 10, 12 में. सेक्शन 10, 11, 10, 12 है क्या? दिस इज एग्जेम्पशन. सेक्शन 11 और 10, 12, अगर 10, 12 को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वो क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन 2.5 लाख एंड कॉर्पोरेशन मोर के ऊपर में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. भाई ठीक है, एग्जेम्पशन आप नहीं दोगे, मान गया. उसके ऊपर में बेसिक जो फंडामेंटल है सेक्शन 10 क्लॉज 12 का, वो पढ़िए. वो क्या लिखा है? सेक्शन 10 क्लॉज 12 पढ़िए. द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेएबल टू वन एम्प्लॉई पार्टिसिपेटिंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. तो ड्यू एंड पेएबल. अब बताइए, प्रोविडेंट फंड में अमाउंट ड्यू और पेएबल कब बनता है? एट द टाइम ऑफ सुपरएनेशन और एट द टाइम ऑफ द एग्जिट ऑफ द मेंबर फ्रॉम दैट ट्रस्ट. उस टाइम में पेएबल बनेगा. सपोज वन मेंबर इज कंटिन्यूइंग, हाउ दिस अमाउंट इज पेएबल? क्योंकि आप तो उसमें अमेंडमेंट लाए हैं. और हाँ, द बेसिक प्रोविजन इज दैट फॉर प्रोवाइड एन एग्जम्पशन दैट इनकम शुड बी चार्जेबल टू टैक्स. ओके, as you know that the charging section of the interest on PF and PF contribution is provided in section 7. सेक्शन 7 में 3 क्लॉज है. फर्स्ट क्लॉज
अगर आप ये पढ़ेंगे कि जो बोलता है द एनुअल एक्रीशन द प्रीवियस टू द बैलेंस आर द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द रूल 6 पार्ट ए ऑफ द 4 शेड्यूल। उसमें क्या है पता है, जो अगर मान लीजिए स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो एक्सिड जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। विद इन स्टैट्यूटरी परमिट लिमिट के अंदर कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। सेकेंड प्रोविजन में था, सेकेंड और थर्ड प्रोविजन पढ़ेंगे जो अगर विड्रॉ करते हैं या पेंशन के प्रोविडेंट, अगर रूल 7D। सेकेंड में था द ट्रांसफर बैलेंस इन आरपीएफ टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड सब रूल 4 रूल 11 पार्ट ए 4 शेड्यूल। एंड थर्ड कंडीशन द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम के लिए 80CCD के लिए प्रोविडेड था। तो ये 3 जो सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है ना, वो एक्सेप्शन रूल्स है, नॉर्मल रूल के लिए नहीं है। जो नॉर्मल आपका स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी सेक्शन 7 में प्रोवाइड नहीं हुआ है। आप बताइए, कोई अगर इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल नहीं है तो आप उसको ऑफर कैसे करोगे और टीडीएस कैसे कटेगा? बट ऑलरेडी सेक्शन प्रोवाइड कर चुके हैं, ईपीएफओ ने गाइडलाइन इशू कर चुका है टीडीएस काटने के लिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्जेबिलिटी सेक्शन अभी तक आया नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसको लाना चाहता है टैक्सेबिलिटी के लिए तो दे हैव टू अमेंड द सेक्शन 7 फर्स्ट, देन यू कैन अमेंड द सेक्शन 10 क्लॉज 11 एंड 12। Unless and until section 7 got amended, you cannot amend section 10, 11, 10, 12. But ये अमेंड आ चुका है ऑलरेडी, तो डिसीजन अभी एम्प्लॉय के ऊपर में है। बट इट इज़ बेटर टू प्रोवाइड द टैक्सेबल। और हाँ, अगर आप उसमें अपफ्रंट अभी टैक्स दे रहे हैं तो सुपर एनेशन के टाइम पे आपको इसके ऊपर अगेन और टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दिस इज़ माई पॉइंट इन दिस रेस्पेक्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे छोटे वीडियो के लिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।